नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश आप सबका स्वागत कर रहा हूँ मेरी चैनल हेलो साहित्य में। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर की एमसीक्यू की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न क्रिटिक रंजीत गुहा की। इनके बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज हम देखेंगे, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रंजीत गुहा? ऑप्शन है आपके पास, इंडियन हिस्टोरियन एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, बी ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट एंड फिलोसोफर, C. American economist and political scientist. D. Australian cultural critic and theorist. राइट आंसर है आपका ए, इंडियन हिस्टोरियन एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज गुहास मोस्ट फेमस बुक? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास, ए एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पेजेंट्स इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया, B. Subaltern study, C. Dominance without hegemony, D. History at the limit of the world history। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो वर्क है उनका है एलिमेंट्री एस्पेक्ट्स ऑफ पेजेंट इंसर्जेंसी इन कॉलोनियल इंडिया। तो राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 3, what is the main argument of elementary aspect of peasant insurgency in colonial India? ऑप्शन है आपके पास, ए दैट पेजेंट्स आर इनहेरेंटली रिबेलियस, बी दैट पेजेंट्स आर इनहेरेंटली सबमिसिव, सी दैट पेजेंट्स हैव अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस, डी दैट पेजेंट्स हैव इरेलीवेंट टू इंडियन हिस्ट्री। तो इसमें से जो राइट आंसर है कि सेंट्रल मैसेज क्या है या थीम है, तो आंसर है सी दैट पेजेंट्स हैव अ डिस्टिंक्ट फॉर्म of consciousness। क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया आपको व्हाट इज गुहास कॉन्सेप्ट ऑफ सब अल्टरनिटी। ऑप्शन है आपके पास, ए द कंडीशन ऑफ बीइंग सबऑर्डिनेट टू dominant group, B the condition of being dominant over subordinate group, C the condition of being outside of dominant group, D the condition of being inside dominant group। The right answer है आपका A the condition of being subordinate to a dominant group। Question number 5, who is Guha's main influence? ऑप्शन है आपके पास, A एंटोनियो ग्रामसी, B मिशेल फूको, C जैक्स डेरिडा, D कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर है ए एंटोनियो ग्रामसी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज गुहास क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी? ऑप्शन है आपके पास, ए दैट इज टू फोकस्ड ऑन द कॉलोनाइजर्स, बी दैट इट इग्नोर्स द कॉलोनाइज्ड, सी दैट इट इज टू ब्रॉड इन स्कोप, डी दैट इट इज टू नैरो इन स्कोप। राइट आंसर है आपका बी दैट इट इग्नोर्स द कॉलोनाइज्ड। Question number 7, what is Guha's concept of dominance without hegemony? ऑप्शन है आपके पास, A the idea that dominant groups always have hegemony, B the idea that dominant groups never have hegemony, C the idea that dominant groups can have dominance without hegemony, D the idea that dominant groups always have both dominance and hegemony। The right answer is C, the idea that dominant groups can have dominance without hegemony। Question number 8, what is Guha's view on the role of the historian? ऑप्शन है आपके पास, A to describe the past as it was, B to critique the past from a present perspective, C to change the present through historical analysis, D to ignore the past and focus on the present। तो इसमें से राइट आंसर है आपका बी टू क्रिटिक द पास्ट फ्रॉम अ प्रेजेंट परस्पेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज गुहास कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकलिटी? ऑप्शन है आपके पास, ए द आइडिया दैट हिस्ट्री इज अ linear progression, B the idea that history is a cyclic process, C the idea that history is a complex and multifaceted process, D the idea that history is irrelevant to the present।
तो इसमें से आपका राइट आंसर है सी, द आइडिया दैट हिस्ट्री इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफेसेटेड प्रोसेस। Question number 10. What is Guha's view on the relationship between history and culture? ऑप्शन है आपके पास that history determines culture, B that culture determines history, C that history and culture are intertwined, D that history and culture are separate entities. तो राइट आंसर है आपका C that history and culture are intertwined. Question number 11. What is Guha's concept of subaltern studies? ऑप्शन है आपके पास A the study of subordinate groups, B the study of dominant group, C the study of relationship between subordinate and dominant group, D the study of the absence of subordinate groups. तो राइट आंसर है आपका C the study of the relationship between subordinate and dominant group. Question number 12. Who is Guha's main collaborator? ऑप्शन है आपके पास A गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, B दीपेश चक्रवर्ती, C पार्था चैटर्जी, D ज्ञान प्रकाश. तो राइट आंसर है मेन कोलैबोरेटर उनके थे C पार्था चैटर्जी. क्वेश्चन नंबर 3. What is Guha's view on the role of state in Indian history? ऑप्शन ए आपके पास ए दैट द स्टेट इज ऑलवेज डोमिनेंट, बी दैट द स्टेट इज ऑलवेज सबऑर्डिनेट, सी दैट द स्टेट इज समटाइम्स डोमिनेंट एंड समटाइम्स सबऑर्डिनेट, डी द स्टेट इज इरेलेवेंट टू इंडियन हिस्ट्री. तो इसमें से राइट आंसर है आपका सी दैट द स्टेट इज समटाइम्स डोमिनेंट एंड समटाइम्स सबऑर्डिनेट. Question number 14. What is Guha's concept of peasant insurgency? ऑप्शन है आपके पास A the idea that peasants are always insurgent, B the idea that peasants are never insurgent, C the idea that peasants can be insurgent in certain contexts, D the idea that peasants are always submissive. The right answer है आपका C that the idea that peasants can be insurgent in certain contexts. Question number 15. Find out from the following the notable student or students of Ranjit Guha. ऑप्शन है आपके पास A दीपेश चक्रवर्ती, B गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक, C पार्था चैटर्जी, D ऑल ऑफ दी अबव. तो राइट आंसर है ये सभी लोग उनके स्टूडेंट थे. तो राइट आंसर है D ऑल ऑफ दी अबव. Question number 16. The lifespan of Ranjit Guha was. ऑप्शन है आपके पास A 1923 to 2023, B 1924 to 2024, C 1922 to 2023, D 1921 to 2020. राइट आंसर है आपका A 1923 to 2023. Question number 17. Ranjit Guha pioneered the blank स्टडी. ऑप्शन है आपके पास ए कल्चरल स्टडी, बी सबाल्टर्न स्टडी, सी हिस्टोरिकल स्टडी, डी दलित स्टडी. तो राइट आंसर है आपका बी सबाल्टर्न स्टडी. क्वेश्चन नंबर 18. गुहा एफिलिएटेड विथ विच पार्टी? ऑप्शन है आपके पास ए कांग्रेस, बी बीजेपी, सी कम्युनिस्ट, डी नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर है आपका सी कम्युनिस्ट. क्वेश्चन नंबर 19. वेयर वाज गुहा बोर्न? ऑप्शन है आपके पास ए बंगाल, बी महाराष्ट्र, सी केरला, डी दिल्ली. तो राइट आंसर है आपका ए बंगाल. क्वेश्चन नंबर 20. फाइंड आउट द वर्क और वर्क्स ऑफ रंजीत गुहा फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट. ऑप्शन है आपके पास ए ओरिएंटलिज्म, बी द हिंदू, सी सबाल्टर्न स्टडीज, डी द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री. तो राइट आंसर है आपका डी द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री. तो दोस्तों ये जो थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे रंजीत गुहा के बारे में. तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए.
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।